मैं ये सोचा कंटिन्यूएशन में पहले ऑर्गेनिक खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल मूव टू इनऑर्गेनिक. सो द नेम ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन्स. Children, what do you mean by hydrocarbons? Hydrocarbons are actually hydrides of carbon. Hydrocarbons are hydrides of carbon. Hydride का मतलब क्या होता है? H negative ion. So when H negative ion gets bonded to a carbon atom, then it forms hydrocarbon. Or you can say when carbon atom gets bonded to hydride ion, H negative ion, or simply you can say when carbon is bonded to hydrogen only, then it is called hydrocarbon. ठीक है. So hydrocarbons can be defined as compounds consisting of carbon and hydrogen only. Write down definition. Hydrocarbons are the compounds consisting of carbon and hydrogen only. ठीक है. They can also be defined as hydrides of carbon. They can also be defined as hydrides of carbon. अरे सर सर हाँ बेटा. सर वो प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दो सर. पता नहीं नेटवर्क सर आज थोड़ा स्लो सा चल रहा है. कट ठीक कट है. की आवाज आ रही थी अभी. ठीक है. अभी मेरी आवाज आ रही क्लियर हाँ सर धनंजय? आ रही है. हाँ सर ठीक आ है. रही है. लिखो. हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ठीक है. they can also be defined as hydrides of carbon. कितनी छोटी सी डेफिनेशन है. हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. ओके. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. Types of hydrocarbons. Children, how many types of hydrocarbons are there? Basically, hydrocarbons are classified into two types. These are saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. ठीक है. So hydrocarbons are classified into two types. These are saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. ठीक. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contains single covalent bond between all carbon atoms. सर कॉन्वलेंट बॉन्ड के बाद Single covalent bond between all carbon atoms. And single covalent bond between carbon and hydrogen. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which all carbon-carbon bonds are single covalent bond and all carbon-hydrogen bonds are single covalent bond. ठीक है. For example, alkanes. The example of saturated hydrocarbon is alkane. ALKANES. Okay. Second, unsaturated hydrocarbons. ये सब आप जानते हो, फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए लिख लो, उसका चैप्टर स्टार्ट होगा. Second type is unsaturated hydrocarbons.
These are the hydrocarbons which contains at least one double bond or triple bond between two carbon atoms, which contains at least one double bond or triple bond between two carbon atoms. ठीक है. These are of two types. Aliphatic unsaturated hydrocarbon, example alkenes, alkynes, cycloalkenes and cycloalkynes. Alkenes, alkynes, cycloalkenes and cycloalkynes. And the second type is aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are also unsaturated hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons like benzene, toluene, etc. Like benzene, toluene, etc. बच्चों, इस चैप्टर में जो हमको मेनली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन. ठीक है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ अल्केन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमको अब स्टार्ट करना है अल्केन्स. First we will start with alkanes. ठीक है. Alkanes are saturated hydrocarbons having general formula CnH2n+2. ठीक है. Alkanes are saturated hydrocarbons having general formula CnH2n+2. अब देखिए, जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर. स्ट्रक्चर एंड nomenclature of alkanes. Structure and nomenclature of alkanes. ठीक है. सेकेंड हेडिंग आपको क्या मिलेगी बुक में? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन. टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स मतलब इसका क्या हुआ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स इन अल्केन्स. ठीक है. द नेक्स्ट व्हाट हेडिंग विल यू गेट? मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ में. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स. नेक्स्ट. अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सारी कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये सब. उसके बाद कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन्स.
कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन्स पहले भी पढ़ा दिया है मैंने आपको, स्टैगर्ड, स्क्यू एंड इक्लिप्स्ड वाला। इसमें कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन्स में किसका है हमारे कोर्स में? इथेन बस का, ब्यूटेन का नहीं है। कुछ बुक्स में ब्यूटेन भी दिया रहता है, प्रोपेन भी दिया रहता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इथेन का है। ठीक। उसके बाद अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अच्छा, आप ये बताइए कि जो पिछला चैप्टर था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, मीथेन हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और जीओसी में भी पढ़ा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जीओसी में पढ़ लिया है, बोलते चलो यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री हमने पढ़ लिया है जीओसी में। यस सर। यस सर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, हम तो सारी टाइप की आइसोमेरिज्म पहले ही पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। ठीक है, ये यस भी सर। हो गया। यस सर। कन्फर्मेशन इन अल्केन्स, टेक एग्जांपल ऑफ इथेन, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड एंड स्क्यू, रोटेशनल आइसोमर्स, रोटामर्स पढ़ लिया है पहले ही। सर एक डाउट था, हाँ, सर इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? स्टैगर्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा दूर हो। देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है, ये आपके 3 बॉन्ड हो गए कार्बन के। ठीक, ये हाइड्रोजन, 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 ये कार्बन एटम नंबर 1 और ये कार्बन एटम नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, इसका पैरेलल वाला बॉन्ड पेयर यहाँ पे है। ठीक, इसका पैरेलल वाला बॉन्ड पेयर पीछे वाला ये है, इसके पीछे वाला ये है। इसको दूसरे तरीके से जब मैंने बनाया था, कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन से, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन पीछे वाला है। ठीक, इक्लिप्स वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, इक्लिप्स वाला इसके ठीक पीछे इधर है इक्लिप्स वाला। ठीक, इधर भी इक्लिप्स कंडीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब आपको ये सिर्फ देखना है कि बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस किस केस में ज़्यादा होगी। ये इक्लिप्स कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, स्टैगर्ड कंडीशन है। ये स्टैगर्ड कंडीशन है जिसमें बॉन्ड पेयर्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, तो जिसमें बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी स्टैगर्ड में, उनमें रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस में होगी, स्टैगर्ड में। मिनिमम किस में होगी, इक्लिप्स्ड में। और जो बीच की कंडीशन होंगी जिनको हम स्क्यू बोलते हैं, उसमें टॉर्शनल स्ट्रेस क्या लगेगा, कम लगेगा एज कंपेयर टू इक्लिप्स। सो इक्लिप्स से ज़्यादा इसकी स्क्यू कंडीशन वाले की क्या होगा, इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी लेकिन स्टैगर्ड से कम होगी। इसमें सिर्फ हमको क्या चेक करना है कि डिस्टेंस बॉन्ड पेयर के बीच में किस में ज़्यादा होगा। जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा, टॉर्शनल स्ट्रेस या टॉर्शनल स्ट्रेन उतना ही कम लगेगा। तो टॉर्शनल स्ट्रेन या रिपल्शन सबसे कम किस में लगेगा, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे बॉन्ड पेयर है, मतलब स्क्यू कन्फर्मर्स में। सो स्टैगर्ड कन्फर्मर्स में। स्टैगर्ड कन्फर्मर्स जो होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। सिंपल सा लॉजिक था, आपको सिर्फ देखना है कि किसमें बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है, जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अपार्ट होते हैं, दैट विल बी मोर स्टेबल। खुशी, अंडरस्टूड? यस सर। दिया था ना गूगल फॉर्म में क्वेश्चन, टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। सर ये आया नहीं था। क्यों नहीं आया? सर ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था, बुक में भी नहीं था इसलिए। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो पढ़ाया था ना क्लास में। अच्छा, कितने बच्चों का ये वाला आंसर सही था? सर मेरा। मेरा मतलब रुमीशा का सही था, सर और मेरा। नेहा का सही था। ठीक है, तो जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को कहीं ना सर कहीं मुझे अप्लाई पता ही करना। नहीं, सर पता ही नहीं है कौन कौन से सही गए हैं मेरे। सब मिला मैंने नहीं था मेल इसलिए। मैंने मेल भेजा तो आज फिर से सर भेजे हैं? सर मैंने भेज देखूंगी। दिया।
चेक कर लेना, या तो आपने फिर ईमेल आईडी गलत टाइप किया होगा इसलिए नहीं जा रहा होगा। यस सर। लेकिन मेल सेंड का जो नोटिफिकेशन आता है डिलीवरी स्टेटस का वो भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको गया है। नहीं तो वो आ जाता है ना डिलीवरी स्टेटस फेल्ड करके आ जाता है मेल का, वो भी नहीं हुआ है। फेल नहीं बता रहा है मतलब आपको गया है वो। ओके। सर चेक कर लूंगी एक बार और। हाँ, नाउ व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्केन्स। सो ये सब हम पहले से पढ़ रखे हैं, इसलिए अभी दोबारा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। विल स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम unsaturated hydrocarbons. Preparation from unsaturated hydrocarbons. ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं? अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्केन्स बनते नहीं हैं। इसका मतलब हमको क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाने का मतलब प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सो इसमें लिख लीजिए, alkanes can be prepared by catalytic hydrogenation of unsaturated hydrocarbons. Alkanes can be prepared by catalytic hydrogenation of unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes. ठीक है, in this reaction सर रिपीट कर दो सर। हाँ, alkanes can be prepared by catalytic hydrogenation of unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes. लिख लिया निशांत? यस सर। Okay, it is in this reaction unsaturated hydrocarbons are reacted with hydrogen gas in this reaction unsaturated hydrocarbons are reacted with hydrogen gas in presence of a catalyst, like nickel or palladium or platinum. Catalyst like nickel or palladium or platinum at 525 to 575 Kelvin temperature. कितना होना चाहिए टेम्परेचर? 525 से 575 केल्विन। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया H2C डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम होगा इसका? समृद्धि? समृद्धि, व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड H2C डबल बॉन्ड CH2? समृद्धि, यस सर। what is the name of this compound H2C double bond CH2? अरे इतना टाइम लगता है?
2 कार्बन है इसलिए वर्ड रूट इथ, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, इथीन। ठीक है, इथीन को हमने रिएक्ट किया किससे? हाइड्रोजन गैस से। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? निकिल कैटलिस्ट और पैलेडियम कैटलिस्ट और प्लेटिनम कैटलिस्ट अंडर द कंडीशन 525 केल्विन टू 575 केल्विन टेम्परेचर पे आप इसको हीट करेंगे। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन पे दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो दिस विल गिव H3C सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये कुछ नहीं है, बहुत इजी है। H2 का एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन एक कार्बन पे जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म लिखना चाहते हो तो मैकेनिज्म बता देता हूँ, रिएक्शन होती कैसे है। इसमें रोल कैटलिस्ट का है। ठीक है, सो जो पहले हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन टूटेगा किस में? जैसे निकिल है, निकिल क्या करेगा? कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके उससे बॉन्डेड हो जाएगा, NiH बना लेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन से लेके NiH बना लिया तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया? H निगेटिव और दूसरा H पॉजिटिव। इसका मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा किस में? H पॉजिटिव प्लस H निगेटिव में, या हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइज हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा कि H2C डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक, तो H प्लस क्या करेगा? अब इसको मैं ऐसे ऐसे ना लिख के मैं इसको पोलराइज कर देता हूँ। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव और H निगेटिव में। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये H है, H पार्शियल पॉजिटिव H पार्शियल निगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा H पॉजिटिव। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? H2C सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा कि H2C पॉजिटिव जो कार्बोकेटायन बना है वो रिएक्ट कर लेगा किससे? H निगेटिव से। ठीक है, मतलब किससे? जो NiH बना था उसमें से। H निगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, वापस क्या बन जाएगा? इसमें भी आके एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दिस विल गिव CH3 So in this way you can explain the mechanism of this reaction, but mechanism of this reaction is never asked. तो हर रिएक्शन में मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ मैकेनिज्म वास्तव में पढ़ने की जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। बस ये समझने के लिए है कि रिएक्शन हुई कैसे। कैटलिस्ट का रोल क्या था? कैटलिस्ट ने पहले एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NiH बना लिया जिसमें H निगेटिव है। दूसरा जो H बचा H प्लस, वो H प्लस इससे रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ पे H निगेटिव मतलब ये NiH है। ठीक है, NiH फिर इससे हाइड्रोजन H निगेटिव इसको दे देगा और Ni विल बी रिलीज्ड। अनदर एग्जांपल, इथीन के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप है। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि इसके एक साइड CH2 है, एक साइड CH3CH है। अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ द साइड्स आर नॉट सेम, सो इट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसको भी अगर आप H2 गैस के साथ रिएक्ट करते हैं सेम कंडीशन में, ठीक, Ni पैलेडियम एंड प्लेटिनम, सेम कंडीशन 525 केल्विन टू 575 केल्विन, क्या होगा? एक हाइड्रोजन एक में जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरे में जुड़ जाएगा। तो दिस विल गिव CH3CH2CH3 दैट इज प्रोपेन। अब इसमें इथेन और प्रोपेन क्या है? अल्केन। ये क्या है इधर? अल्कीन। तीसरा एग्जाम्पल अल्काइन का ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं H यहाँ से लिखता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, इसको अगर आप H2 से रिएक्ट करते हैं, H2, ठीक है,
in presence of nickel or palladium or platinum as catalyst 525 Kelvin temperature to 575 Kelvin temperature। पहले क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, ये इथीन, इथाइन से इथीन बन जाएगा। दिस विल गिव H2C डबल बॉन्ड CH2। एक पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। So ethine gets converted into ethene first, or you can say alkyne gets converted into alkenes first. Then it will further react with one more molecule of hydrogen in presence of same catalyst under same condition of 525 Kelvin to 575 Kelvin, और फिर एक एक हाइड्रोजन दोनों में जुड़ जाएगा। So this will give H3C single bond CH3 इथेन। तो इथीन से जब या अल्कीन से जब अल्केन बनते हैं डायरेक्ट सिंगल स्टेप में हो जाती है रिएक्शन। अल्काइन से जब होगा तो पहले अल्काइंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स एंड देन अल्कीन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स बाय हाइड्रोजनेशन। सिंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोजन के दोनों एटम ऐड हो रहे हैं, कुछ भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज दिस, कैटालिटिक एडिशन रिएक्शन, which is an example of electrophilic addition reaction, or sometimes it can be free radical addition reaction। फ्री रेडिकल एडिशन में क्या ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए इसको हम फ्री रेडिकल नहीं मानते। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलाइज्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। आगे समझ में? यस सर। ऑल राइट। अच्छा, इस रिएक्शन का एक लिमिटेशन है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स? कोई भी गेस करके बता सकता है मुझे, दिमाग लगा के, क्या लिमिटेशन हो सकता है इसका? सर टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग तो नहीं बेटा, कैटालिटिक रिएक्शंस आर फास्ट, कैटालिटिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, द ओनली लिमिटेशन इज दैट मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। बना सकते हैं क्या मीथेन को? नो सर। मीथेन बनाने के लिए अल्कीन और अल्काइन में क्या होना चाहिए, मीथीन और मिथाइन। मीथीन मिथाइन होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दो कार्बन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दो कार्बन एटम ही नहीं होंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं होगा। इसका मतलब मीथीन डू नॉट एग्जिस्ट। मीथीन नहीं है तो मीथेन भी नहीं बनेगा। लिमिटेशन लिख लीजिए, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। So children, that's all for today। ठीक है, टाइम इज ओवर। पता नहीं चलता टाइम का, ये तो लाइट ईयर की स्पीड से भग रहा है टाइम। भग रहा है कि नहीं भग रहा है? आपको लगता होगा कि लंबा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइट ईयर की स्पीड से टाइम भग जाता है